Hello dear students, welcome back to a news channel. Students, today we are going to take a journey through time and history. So today we are going to talk about Gautam Buddha's first sermon, okay? And where it happened, the place is Sarnath. It located just a few kilometers away from Varanasi in Uttar Pradesh. And students, today Sarnath is not only a holy Buddhist site, but it is also a symbol of India's rich cultural heritage. So much so that its most famous architect, the lion capital of Ashoka, it is now our national emblem. है ना, आपने देखा होगा ना नेशनल एम्बलम, राइट? तो जो लायन कैपिटल है अशोका का, वो हमारा नेशनल एम्बलम है. So the question is, how did Sarnath travel through time from Buddha's first sermon to the ruins we see today and then to its rediscovery by archaeologists? That's the story we'll explore in this podcast. First, let's get our bearings. So, Sarnath कहाँ पर है? सारनाथ आपको जैसे मैंने बताया, it is located 10 kilometers northeast of Varanasi. बहुत पुरानी, बहुत, आप ये कह सकते हो, it is one of the oldest living cities in the world. Okay? तो बात कर रहे हैं 6th century की. Okay? जब बुद्धा का समय था, during the time of Buddha, this area was a quiet forest filled with deer. In fact, ancient Buddhist texts refer to this place as Mrigdev. Mrigdev मतलब डियर पार्क. ओके, इस एरिया को क्या कहा जाता था? मृगदेव. ठीक है. अब देखो, एक और नाम था इसका, ऋषिपतन, मतलब द प्लेस वेयर होली मेन रिसाइड. So this peaceful setting was where a significant event in world history took place. यही वो जगह थी जहां पर आप कह सकते हैं कि विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट यहाँ पे हुआ था. क्या था इवेंट? गौतम बुद्ध का फर्स्ट सरमन. जब उन्होंने एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, एनलाइटमेंट के बाद उनका जो पहला सरमन था वो उन्होंने यहीं पे दिया था. Okay, so imagine a small group of followers sitting under a tree and they are listening intently as Gautam Buddha shared his first teachings. Okay, so this grouping, this gathering later became Buddhist Sangh or community. Okay, so this is why students, Sarnath is so deeply respected, revered, because it's the birthplace of Buddhism as a spiritual tradition. Okay, अब बात करते हैं 528 BCE की. सिद्धार्थ गौतम, who is now the Buddha, the awakened one, had just attained enlightenment at Bodh Gaya. तो उन्हें enlightenment कहाँ पे हुआ था? बोध गया में. So what do you think his first step would have been? Of course, he wanted to share what he had discovered, the path to end suffering. As a result, he traveled to Sarnath to meet 5 of his former companions. जो उनके साथ थे, पहले उनके साथी थे. ठीक है, वहां पे उन्होंने अपना पहला सर्मन डिलीवर किया, धम्म चक्र परिवर्तन, और और सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्मा. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये सर्मन डिलीवर किया. अब इसके साथ ही साथ, इस सर्मन के साथ he gave 4 noble truths. Okay, so what are 4 noble truths? First is, life is full of suffering. Okay, life is full of suffering, dukh.
सेकेंड इज कॉज ऑफ सफरिंग, ये जो सफरिंग है, ये जो कष्ट है, ये इसका रीजन क्या है? रीजन है डिजायर, अटैचमेंट. थर्ड, देयर इज अ वे टू एंड सफरिंग. एंड फोर्थ, द वे इज एट फोल्ड पाथ. एट फोल्ड पाथ, जिसे अष्टांग का मार्ग भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यूपीएससी के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके हमेशा से अगर हम पीवाईक्यूज अगर देखेंगे तो हमेशा से उसमें से क्वेश्चन आए. ऑल राइट, तो फोर नोबल ट्रुथ्स दिए. एंड दिस मूवमेंट वाज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. Okay, that's why the exact spot where this sermon was given is marked by a massive structure today, the Dhammik Stupa. तो कहां पर है ये? ये जो स्पॉट है, अब देखो ना, यहीं से बुद्धिज्म की एक ऑर्गेनाइज रिलीजन के रूप में देखा गया. तो यहाँ पे एक मैसिव स्ट्रक्चर है धामिक स्तूप का. Now can you imagine what it must have felt like to be there, hearing these ideas for the very first time? है ना? अब यही आइडियाज थे जो आगे चल के दूर दूर तक हमारी कंट्री में इसका जन्म हुआ, बुद्धिज्म का. अब आगे आगे चल के चाइना में स्प्रेड हुआ, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में. राइट? सो एज सेंचुरीज पास्ट, सारनाथ became a vibrant center of Buddhist learning and pilgrimage. ठीक है, तो अब जैसे जैसे साल बीतते गए तो सारनाथ का इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स बढ़ता गया. ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट एक की फिगर थे हमारे हिस्ट्री में जिन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो है एम्परर अशोक. ओके सो एम्परर अशोक, ही रूल्ड इंडिया अराउंड 268 to 232 BC. ओके तो इन्होंने इस टाइम पे ये रूल किया था. अशोका ने कलिंगा की वॉर के बाद उन्होंने जब पूरा विटनेस किया हॉरर्स ऑफ वॉर, सो ही embraced बुद्धिज्म and he worked to spread its message of peace and non-violence. He built many stupas, monasteries उन्होंने बनाए, pillars उन्होंने इरेक्ट किए. ओके अशोक स्तंभ बहुत सारी जगह पे उन्होंने स्प्रेड वो स्टैब्लिश किया. सारनाथ में उन्होंने फेमस लायन कैपिटल पिलर he erected and which you might recognize today as India's national emblem. तो कैसा है देखने में, आपने देखा होगा, 4 लायंस है बैक टू बैक. इट सिंबलाइज पावर, करेज, प्राइड, कॉन्फिडेंस. और लायंस के नीचे ही एनिमल्स भी है. कौन कौन से एनिमल्स है? बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है, एक लायन भी है. ये क्या कर रहे हैं? इट सिंबलाइजेस द स्प्रेड ऑफ बुद्धास टीचिंग इन ऑल डायरेक्शन. ओके so Ashoka's contribution turned Sarnath into a flourishing Buddhist hub. Later, during Kushan dynasty, Gupta dynasty, Sarnath continued to survive. And these rulers maintained and expanded the monasteries, making Sarnath a spiritual university. है ना, जैसे similar to Nalanda and Takshila. तो सारनाथ कुशान गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे भी फ्लरिश करता गया. But students, you know that history is rarely a straight line. तो 12th सेंचुरी में क्या हुआ? सारनाथ का ट्रैजिक डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की अगर माने तो सारनाथ was sacked, burned. Archaeologist named Alexander Cunningham, who studied the site in 19th century, he described how everything had been destroyed: temples, statues, monasteries. Who was responsible? देखो कुछ थ्योरी तो है. पहली थ्योरी ये कह रही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, military commander of Muhammad of Ghor, he marched towards Varanasi and he destroyed many temples. And Sarnath likely fell victim during this invasion. And another group of archaeologists, they believed that the decline may have started earlier when Buddhists were forced to leave and a large Shaivite temple was built on the site. So, students, regardless of the exact cause, the end result was clear. The monks fled, monasteries टूट गई, बुद्धिज्म इंडिया से
वैनिश होता चला गया, जो मतलब कि लैंड यहाँ पे उसका जन्म हुआ था, जन्मभूमि थी, ठीक है। सो फॉर नियरली 700 years सारनाथ lay silent and it's देखो ना, एक टाइम पे कितना ज्यादा वहां पे मोनास्ट्रीज थी, monks रहते थे। Then what happened in the 18th century, late 18th century, a rediscovery began. And it started quite as an accident. Okay? Accident के रूप में इसको ये मिला दोबारा से। सो एक लोकल रूलर थे, बाबू जगत सिंह। ओके, बाबू जगत सिंह। तो बाबू जगत सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने जो वर्कर्स थे उनके आसपास के, उन्होंने बोला कि इसकी खुदाई की जाए। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे स्टम्बल्ड अपॉन एंशिएंट स्टोन बेसेस एंड स्कल्पचर्स। सो एट फर्स्ट सम ऑफ these artifacts were even discarded or thrown into the गंगा। कुछ तो ऐसे थे वो उन्होंने गंगा में फेंक दिए, क्योंकि लोगों को उस टाइम पे पता नहीं आया कि इसके क्या इंपॉर्टेंस, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर 1799 में एक इंडोलॉजिस्ट थे जोनाथन डंकन नाम के, जिन्होंने संस्कृत कॉलेज वाराणसी में, यस जोनाथन डंकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी। जोनाथन डंकन थे, उन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना करी थी वाराणसी में। तो उन्होंने इस रिपोर्ट को देखा। His writings caught the attention of British archaeologists. So in the early 1800s, Alexander Cunningham, the founder of Archaeological Survey of India, ASI, he began systematic excavation. And by 1836, Cunningham confirmed that this was indeed the site of Buddha's first sermon. फिर 1904 1905 में फेडरिक कोर्चल आए थे, इन्होंने और साइंटिफिक एक्सकवेशन किया, एंड ड्यूरिंग जस्ट वन सीजन he discovered 476 architectural sculptures. Okay, so thanks to these efforts we now know about the vast historical layers of Sarnath. ठीक है, तो कैसे एक टाइम पे इतनी ज्यादा इसकी ग्लोरी थी, फिर अब धीरे धीरे कैसे उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, right? And among the most important discoveries was the lion capital of Ashoka, of course. This beautiful sculpture was later adopted as the emblem of independent India in 1950. Okay? तो आज हम देखो इसको करेंसी नोट्स में देखते हैं, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में देखते हैं, पासपोर्ट पे देखते हैं। अब जो उसकी व्हील बना है, आपने देखा होगा उसके नीचे एक व्हील बना है, इट नोन एज द धर्म चक्र। इट ऑल्सो अपीयर्स ऑन आवर नेशनल फ्लैग। देखो कितना ब्यूटीफुल है हमारा नेशनल एंथम, है ना, कितना ज्यादा उसको सिग्निफिकेंस है, कि क्या क्या वो सिग्निफाई करता है उस टाइम पे जब बनाया था, राइट। और देखो एक और अपडेट है कि इंडिया इज बेसिकली वर्किंग टू गेट सारनाथ इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसका रिकॉग्निशन उसको यूनेस्को के थ्रू भी मिले। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम ये ऐसे किसी हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। ओके, हमें देखना चाहिए कि जो ये सिंबल है, जो ये आर्टिफैक्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स इंडियाज जर्नी। ओके, इट्स लाइक अ मिरर ऑफ इंडियाज जर्नी, a place of learning, spirituality, destruction, rediscovery, and renewal. So next time, students, you see the national emblem, those proud lions standing tall. Remember, ancient voices of monks, pilgrims, Sarnath. Okay? क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, ये स्टोरी है किस चीज की, रेजिलियंस की, rediscovery की। It reminds us that even after centuries of silence, truth and knowledge can rise again. Okay? अब देखो जो हमारा लायन कैपिटल है, जो आपने देखा होगा वहां पे एक मोटो भी लिखा रहता है।
सत्यमेव जयते. ओके, सो सत्यमेव जयते का मतलब क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना. ओके, कहाँ से लिया गया है ये भी आप मुझे बताना. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. I'll see you in the next episode. Till then, keep exploring, keep asking questions. Bye bye.